Good morning, students. Today we will start our next topic of unit number 2 of semiconductor physics. Today we will try to complete our unit number 2 of this book. So we start from the topic that is common collector configuration. Now, in this type of configuration, collector terminal is taken as common terminal for both input and output section of the transistor, as we all know, because its name is common collector, means collector terminal is taken as a common terminal for both input and output section of the transistor. For active mode of this configuration, base emitter junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. ऑब्वियसली बात है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट सेक्शन होगा हमारे पास उसको हम करते हैं फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. ठीक है, अगर हम देखते हैं सर्किट डायग्राम फॉर द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, यू विल सी हियर दैट हियर इनपुट बायसिंग या फिर इनपुट वोल्टेज इज प्रोवाइडेड through the resistance RB. It means here IB base current will act as the input current and output voltage is obtained across the resistance RE. It means emitter current IE will act as the emitter current. Now you have a misperception that कि अगर यहाँ पर कलेक्टर कॉमन है हमारे पास तो नीचे की तरफ कलेक्टर आना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे पास. एक्चुअली द थिंग इज जिसके अक्रॉस हम रेजिस्टेंस लेते हैं वहाँ पर हम लेते हैं आउटपुट वोल्टेज को, और जिसके अक्रॉस हम आउटपुट में रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास, देन वी विल से दैट दिस वोल्टेज इज कॉमन. आई कैन ऑल्सो से दैट वी कैन अप्लाई हेयर सम ग्राउंडिंग. ठीक है, तो दिस इज द DC bias use circuit diagram for the common collector configuration. Here the direction of base current, emitter current and collector current should be clear to you. And again, as in other cases, here also emitter current IE is equal to IB plus में IC. Okay, where VBC and VEC are the voltages between base collector junction and the emitter collector junction. Next हम move करते हैं toward the current amplification factor. It is defined as the ratio of change in output current to the change in input current. As we all know, हमेशा की तरह डेट करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है हमारे पास, रेशो होती है चेंज इन आउटपुट करंट बाय में चेंज इन इनपुट करंट. तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट करंट क्या है, IE है हमारे पास, सो गामा AC आ जाएगा हमारे पास डेल्टा IE बाय में चेंज इन आउटपुट करंट यानी कि डेल्टा IB, कीपिंग फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VEC. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है, सो नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टर करंट IC. As we know from the common base configuration case, IC was equal to alpha by 1 minus alpha IB plus 1 by 1 minus alpha ICBO. Now we can replace alpha by 1 minus alpha from gamma minus 1 and 1 by 1 minus alpha from gamma. ठीक है, कैसे आया देखो, ये हम जानते हैं गामा इज इक्वल टू व्हाट, IE बाय में IB. इट मीन्स IE बाय में IE माइनस IC, बिकॉज IB क्या है, डिफरेंस है IE का और IC का. ना ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे IE से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IE बाय में IE, यहाँ पर आ जाएगा IE डिवाइडेड बाय IE माइनस IC डिवाइडेड बाय IE, बिकम्स 1 माइनस अल्फा. सो गामा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ से यहाँ. ऐसे ही अगर गामा में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 1 बाय 1 माइनस अल्फा माइनस 1. सोल्व करेंगे अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, तो आपका ये बन गया हमारे पास. ठीक है, सो हेयर यू गोट एक्सप्रेशन कलेक्टर करंट IC. ठीक है, नाउ
Next we move toward the characteristics of the common collector transistor. As we all know, we are having two types of characteristics, input and output characteristic. Input characteristic is a graph, is a relationship between the input current, that is our base current, and input voltage, that is our base collector voltage. Now to determine the input characteristic, the output voltage EC is kept constant. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आउटपुट वोल्टेज जो करते हैं कांस्टेंट, मान लीजिए हमने 3 वोल्ट पे इसको कर लिया कांस्टेंट, और हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज VBC को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0 वोल्ट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बेस करंट को नोट करेंगे. ठीक है, जैसा कि बाकी कॉन्फ़िगरेशन में होता था हमारे पास, ऐसे हमने क्या किया है, हमने आउटपुट वोल्टेज को कर दिया कांस्टेंट. अब अगर हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हुए इनपुट करंट को नोट करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा उसे हम बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पर, VEC इक्वल टू 3 वोल्ट के लिए ग्राफ आपका डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, अगर आप VBC की वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो आपका जो ग्राफ है करंट आपका डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, करंट आपका डिक्रीज करता है. नाउ इसको पढ़ते हैं आगे. नाउ इट इज सीन फ्रॉम अबोव ग्राफ डैट फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VC, अगर हमने VC को फिक्स कर दिया तो I भी डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ VBC, यानी कि VBC की वैल्यू को इंक्रीज करने पर जो IB की वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है. इसका कारण क्या है, एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज डैट एज वी नो डैट VC क्या होता है हमारे पास, VC को हम तोड़ सकते हैं 2 पार्ट्स में, VC यानी कि VCB प्लस में VBE. देखो यहाँ पे B यहाँ पर लास्ट में है या स्टार्टिंग में है, तो उनको ऐड करते तो B विल ओमिट आउट, विल गेट VCE. सो किसी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं. ठीक है ना. देखो अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, आई कैन पुट हेयर डैट वी आर हैविंग हेयर 3 पॉइंट्स. एक तो हमारे पास यहाँ पर है C, एक ये हमारे पास है B, और एक हमारे पास ये है E. तो इसे तुम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हेयर VCB, और इसे हम बोलते हैं क्या, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स VB और E. तो अगर हम इस पॉइंट को भूल जाए देन दिस वुड बी कॉल्ड एज VCE. क्लियर है. तो यहाँ से ये चीज़ आई थी हमारे पास. आगे देखो, नाउ फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VB, अगर हमने VB को फिक्स कर दिया फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VB, तो यू विल सी डैट अगर आपका जो VBE फिक्स है, ये टर्म फिक्स हो गई आपकी, तो मतलब क्या है, ये टर्म डिपेंड करती है इसके ऊपर, यानी कि इसको इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज करेगा, इसको डिक्रीज करने पर ये डिक्रीज करेगा. दैट इज विद इंक्रीज इन VCB VCE इंक्रीजेज. ऑल्सो VCE को इंक्रीज करने पर आपको ध्यान हो क्या हुआ था, अगर आप कोलेक्टर और अगर आप VCE को इंक्रीज करते हैं तो यू विल सी डैट कोलेक्टर जंक्शन पे क्या हो रहा है, आपका रिवर्स बायस इंक्रीज हो रहा है. यानी कि मतलब क्या, डिप्लीशन लेयर है बेस रीजन के अंदर और कोलेक्टर रीजन के अंदर इंक्रीज करेगी, यानी कि बेस रीजन के अंदर जो इफेक्टिव विड्थ है वो डिक्रीज करेगी. अगर इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन कम हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन कम हो गया तो यानी कि आपका बेस करंट कम हो जाएगा. इसे ही हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट. तुमने क्या देखा लास्ट में, क्या हो रहा है, आपका बेस करंट कम हो गया. हैंस VCB की वैल्यू को इंक्रीज करने पर आपका जो बेस करंट है डिक्रीज करता है, और यही कारण है ग्राफ के इस तरह से आने का. दूसरा, अब कह रहा है कि वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ ग्राफ हियर. अगर हम ग्राफ में हमने जैसे कि यहाँ पर हमने ग्राफ लोड किया, इसके लिए अगर हम अब VEC की वैल्यू को 3 से 5 कर दी, हमने VEC की वैल्यू इंक्रीज कर दी. ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, मान लीजिए आपने इंक्रीज कर दी, तो यू विल सी डैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VBC की वैल्यू मैंने कर दी कांस्टेंट, तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं, बेस करंट आपका इंक्रीज कर गया. एक बार आप इस ग्राफ को दोबारा से देख लीजिए.
देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ आ गया है बिटवीन वी बी सी एंड बिटवीन आई बी। तो एक तो ग्राफ मेरे पास ये वाला आ गया और दूसरा ग्राफ मेरे पास ये वाला आ गया। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये मैंने वैल्यू फिक्स कर दी है वी बी सी की फॉर दिस वैल्यू, उसको मैंने देता हूँ वी बी सी नोट। ठीक है, तो ये अगर हम इस पर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर लाइन, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन हियर। तो देखो ड्रॉ कर दी। अब इसको ग्राफ को समझो। देखो ये ग्राफ तो कब था, जब हमारे पास वी सी की वैल्यू 3 वोल्ट थी, और ये था जब वी सी की वैल्यू 5 वोल्ट थी हमारे पास। तो इस ग्राफ में तो इस वैल्यू के लिए बेस करंट इतना आ रहा है, और इस ग्राफ के अंदर वी बी सी की इस वैल्यू के लिए बेस करंट इतना आ रहा है। यानी कि इस केस के लिए जो बेस करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई है एज कंपेयर टू दिस केस। ठीक है, यानी कि वी सी ई की वैल्यू को इंक्रीज करने पर जो बेस करंट का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है। समझ में आपको? तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है that again when graph between VBC and IB is plotted for higher value of VCE, we observe increase in IB. कब? for a fixed value of VBC. इसका कारण क्या था? वो इसलिए था। ऑल्सो फिर से हम जानते हैं VCE क्या होता है, VCE क्या होता है, VCB प्लस में VBE होता है। अब की बार अगर हम VCB को करते हैं कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पर किया, सो कांस्टेंट कर दिया, तो VCE को इंक्रीज करने पर VB इंक्रीज करेगा। यानी कि ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है। और ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर आप VB की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, यानी कि आप बेस एमिटर जंक्शन को कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस। अगर आपका बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हो गया तब क्या होगा हमारे पास, तब हमारे पास मेजॉरिटी करंट जो एमिटर बेस जंक्शन के अक्रॉस था वो बढ़ जाएगा। अब मेजॉरिटी करंट बेस का भी था और एमिटर का भी था, यानी कि फॉरवर्ड बायस बढ़ने पर, वीबी के बढ़ने पर आपका जो बेस करंट भी इंक्रीज करेगा और आई भी इंक्रीज करेगा। इसी कारण क्या हो रहा, आपका बेस करंट क्या हो गया, आपका इंक्रीज हो गया। तो इसलिए हमने क्या देखा, जो आपका ग्राफ है वो हाई वैल्यू के लिए ज़्यादा बेस करंट लेकर आ गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की। ए ग्राफ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, उसे बोलते हैं हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है। आउटपुट करंट क्या है, एमिटर करंट है। और हमारे पास कांस्टेंट क्या रखा हमने, इनपुट करंट को, यानी कि आईबी को। और आप देख पा रहे हैं कि कॉमन एमिटर में जो हमारे पास आउटपुट की करेक्टरिस्टिक्स आई थी, वैसी ही करेक्टरिस्टिक हमारे पास कॉमन कलेक्टर के अंदर भी आ रही है। वही सैचुरेशन रीजन है हमारे पास, वही एक्टिव रीजन है, और ऐसा सेम के सेम हमारे पास कट ऑफ रीजन है। ठीक है, इसका हमारे पास कारण ये है, एज वी नो डैट आई ई इज इक्वल टू होता है अल्फा इंटू आई सी, ये हम जानते हैं। ठीक है, बट अल्फा की वैल्यू क्या थी, नियरली यूनिटी थी। आप अगर ध्यान दो, कॉमन बेस के अंदर हमने कहा था कि जो करंट गेन है वो नियरली 1 होता है। अगर अल्फा नियरली यूनिटी है, यानी कि आई ई क्या, नियरली इक्वल टू आई सी है। ठीक है, आई सी है। दस विद इंक्रीज इन वी सी को इंक्रीज करने पर जो एमिटर करंट में चेंज आएगा वो सिमिलर होगा किसके, चेंज इन कलेक्टर करंट के, चेंज इन कलेक्टर करंट के। ड्यू टू दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर टू डेट ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए हम बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल सिमिलर होती है। और शायद इसलिए हम बोलते हैं दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज एमिटर फॉलोवर सर्किट, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं इसके अंदर हम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, ऑब्वियसली बात है चेंज इन इनपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा वीबीसी बाय डेल्टा आईबी।
विद आउटपुट वोल्टेज VC इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर बात करते हैं अबाउट आउटपुट रेजिस्टेंस R0 इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन आउटपुट करंट, यानी कि डेल्टा VEC बाय डेल्टा IE व्हेन इनपुट करंट IB इज मेड कांस्टेंट। तो ये था आपका कॉमन कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन। आगे हम मूव करते हैं ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हम जानते हैं अल्फा क्या था, आपको ध्यान हो तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारे पास करंट गेन था अल्फा, वो था IC बाय में IE, क्योंकि IC तो वहाँ पर था आउटपुट करंट और IE वहाँ पर था इनपुट करंट। ऐसे ही कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर बीटा था आपका करंट गेन, वो इक्वल था आउटपुट करंट IC बाय में इनपुट करंट IB के। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं बीटा क्या होता है, IC बाय IB, बट IB को हम लिख पा रहे हैं कैसे, IE माइनस IC। क्यों? क्योंकि भाई जो IE होता है वो होता है IB प्लस में IC के। तो IB क्या आ गया, IE माइनस का IC, तो E माइनस का IC। अब डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे IE से, IC बाय में IE यहाँ पर आ गया, IE बटे में IE यहाँ पर माइनस IC बटे में IE यहाँ पर। अब IC बाय IE तो क्या होता है, अल्फा होता है। यहाँ पे आपका अल्फा आ गया, ये आपका कट गया 1 आ गया, ये आपका IC बाय IE फिर से अल्फा आ गया। तो बीटा आपका किसके इक्वल आ गया, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा के। तो ये जो था हमारे पास पहला रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब इसी टर्म में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आपकी यहाँ पर आ गई और ये ऐसे ही रहेगी हमारे पास। इसको ओपन करेंगे, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब इस टर्म को हम यहाँ ले आए, बीटा यहाँ पर रह गया, ये टर्म को यहाँ के लिए आते हैं, अल्फा कॉमन आ गया, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। देन अल्फा क्या आ गया आपका, अल्फा इज इक्वल टू आ गया बीटा बटे में 1 प्लस में बीटा। तो ये दूसरा रिलेशन है बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सो रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, आगे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा के बारे में। नाउ हम जानते हैं अल्फा पीछे डिफाइन कर चुके हैं, IC बाय में IE, बीटा इज इक्वल टू IC बाय में IB, गामा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, गामा था करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका एमीटर करंट तो था आउटपुट करंट और बेस करंट था आपका इनपुट करंट। तो गामा क्या बन जाएगा आपका IE बाय में IE बटे में IB। अब देखो गामा क्या होता है, IE बटे में IB। अब IE को हम लिख पाते हैं IC प्लस IB जानते हैं, और IB आपका एज इट इज, तो डिवाइड करने पर बन गया IC बटे में IB प्लस में IB बटे में IB यानी कि 1, और IC बाई IB क्या होता है आपका, बीटा होता है। तो क्या बन गया, बीटा प्लस में 1। तो पहला रिलेशन हमने निकाल लिया, वो क्या था, गामा इज इक्वल टू क्या है, बीटा प्लस में 1 हो गया। तो बट हम जानते हैं बीटा क्या होता है, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, अभी किया हमने। अगर बीटा इतना होता है, पुट करेंगे बीटा की वैल्यू को यहाँ पे कीजिए, गामा आपका आ गया अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा प्लस में 1 सॉल्व करने पर आ गया इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस अल्फा। तो आपने गामा निकाल लिया, 1 बाय 1 माइनस अल्फा आ गया। ठीक है, नाउ ये हमारे पास है इसका दूसरा रिलेशन। अब बात करते हैं, नाउ हम निकालेंगे अ रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 अल्फा बीटा एंड गामा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू गामा, यहाँ भी करेंगे अल्फा इंटू 1 बाय 1 माइनस अल्फा, ये आपका आ गया। ठीक है, बट ये टर्म इक्वल होती है किसके, बीटा के, तो अल्फा गामा इज इक्वल टू आ गया बीटा। तो ये आपका था थर्ड रिलेशन। फिर से बता दूं, इसमें हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा यहाँ पर अल्फा यहाँ पर, अल्फा किया तो यहाँ पर ये आ गया, अल्फा यहाँ पे किया तो अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा यहाँ पे बन गया, और ये बीटा होता है आपका। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पावर गेन का।
एज वी नो डैट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, या फिर करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो पावर गेन क्या हो जाएगा, पावर गेन हो जाएगा वोल्टेज गेन इनटू में करंट गेन, या फिर करंट गेन का स्क्वायर इनटू में रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, सो अगर इसको यूज करते हैं हम तो वी आउटपुट बाय वी इनपुट, आई आउटपुट बाय में आई इनपुट। अगर हम बात करते सपोज कर लीजिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो पावर गेन आपका एसी सिग्नल के लिए क्या हो जाएगा, वी आउटपुट क्या होता है चेंज इन वीसीबी, वी इनपुट क्या होता है चेंज इन वीईबी, और करंट गेन क्या होता है अल्फा एसी। क्लियर है। अगर हम इसको निकालते हैं इसका यूज करते हुए, यानी कि करंट गेन का स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर, आर आउटपुट बटे में आर इनपुट, आर आउटपुट बटे में आर इनपुट। यहाँ लिखा हो देखो ध्यान से, आर आउटपुट बीटा आर इनपुट बीटा, यानी कि जो ये आउटपुट रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ बेस, ये है इनपुट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कॉमन बेस। इस बीटा का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। ऐसे हम बात करते हैं पावर गेन इन केस ऑफ कॉमन एमीटर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास पावर गेन एसी आपका हो जाएगा चेंज इन वीसी बटे में चेंज इन वीबी इनटू में बीटा एसी। क्लियर है। ये तो आपका हो गया वोल्टेज गेन, ये आपका हो गया करंट गेन। अगर निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, बीटा का स्क्वायर इनटू में आर आउटपुट ई, आर इनपुट ई आपका आ गया। ठीक है, इस तरह से हम पावर गेन को इवेल्युएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू। अब मूव करते हैं हम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अब मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज डीसी लोड लाइन एंड इट्स एनालिसिस। तो इसको हम स्टडी करेंगे फ्रॉम आवर बुक दैट इज मॉडर्न सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें टॉपिक बिल्कुल अच्छा दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। डीसी लोड लाइन क्या होती है, पहली बात तो हमारे पास डीसी लोड लाइन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ IC and VCE for different values of base current when no input signal is applied। तो डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है। क्या बता रहे हैं, देखो डीसी लोड लाइन पहली बात तो क्या है, ये जब हम कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के केस में अगर आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, आपको ध्यान है जैसे कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कर्व फॉर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। किस केस में, इन द केस ऑफ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें अगर अब आप इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन होती है ये, ठीक है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट। ठीक है, व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, उसे हम बोलते हैं डीसी लोड लाइन। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन को, इस लाइन को आप इस डायग्राम से कंपेयर कीजिए। ये बोल रहा है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने बना रखी है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बेस करंट की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर हम VCE और IC के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तब हमें जो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी, प्रोवाइडेड आपका जो इनपुट सिग्नल है डेट शुड बी 0, उसे हम बोलते हैं डीसी लोड लाइन। आगे हम बात करते हैं हाउ टू ऑब्टेन डीसी लोड लाइन। नाउ लेट अस कंसिडर द कॉमन एमीटर सर्किट यूजिंग NPN ट्रांजिस्टर। ये पीछे पढ़ चुके हैं सर्किट डायग्राम फॉर द कॉमन एमीटर सर्किट, वही हमने यूज़ करना है। आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, नया बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल VI अप्लाई किया था, बट यहाँ पर जो VI की वैल्यू कितनी है, 0 है हमारे पास। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक बात देखिए आप, अगर आप सबने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ पढ़ा हो, डेट इज KVL, इसे बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसकी डेफिनेशन ये होती है हमारे पास कि किसी क्लोज लूप के अंदर टोटल वोल्टेज, जितनी भी वोल्टेज होती है उन सबका सम इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आ गई आपको। एक क्लोज लूप के अंदर जितनी भी वोल्टेजेस होती है उनका सम 0 होता है।
अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप है ना, कहीं से ओपन नहीं है। बट ये अगर इसको देखो ये ओपन है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, यानी कि यहाँ से ओपन है ये। तो हम बात करें इस लूप की। इस लूप में हमारे पास तीन तरह की वोल्टेजेस है। एक तो वोल्टेज कौन सी है, सी और डी के बीच में, एक वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और एक वोल्टेज इस बैटरी की। तीन हमारे पास वोल्टेज है। तो केवीएल बोलता है कि इन तीनों वोल्टेज का जो सम है क्या होगा, सम क्या होगा आपका, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। नाउ एक इसका रूल होता है कि अगर आप इस सर्किट के अंदर कोई लूप चलाते हैं, आपने ये लूप चला दिया, आपने ये लूप चला दिया, ठीक है, तो ये लूप कहता है कि जो इसका एरो है सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो हम उस वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं। अगर वो बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पहले जाएगा तो हम उस वोल्टेज को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जब बात हो रही हो रेजिस्टेंस की, तो अगर रेजिस्टेंस में करंट की दिशा और लूप की दिशा अलग अलग है तो हम करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको लेते हैं नेगेटिव। और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट पास कर रहा है और जो लूप में हमने एरो ले रखा है, अगर उनकी दिशा सेम है तो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगी उसको लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, नाउ इस लूप के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, अगर इफ वी सी टुवार्ड्स दिस लूप, नाउ यू विल सी दैट, हम मानते कि आपका, आप देख पा रहे हैं ये V पॉजिटिव है तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यानी कि यहाँ आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर इस लूप को देखें, ये लूप आपका ऐसे जा रहा है, ये देखो पहले ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे गया, मतलब क्या, एरो तो नीचे की तरफ है, और इस लोड रेजिस्टेंस में जो करंट की दिशा क्या है, ये इस तरह से जा रही है। देखो इस लोड रेजिस्टेंस के अंदर देखो आप ध्यान से, आप देखो ध्यान से आप, ये हमारे पास कर्व बनाई मैंने, इस कर्व का जो एरो तो नीचे की तरफ है, एक बार तो नीचे गया यहाँ पे, तो जब नीचे जा रहा है तो कर्व तो नीचे है, रेजिस्टेंस के लिए एरो तो नीचे है, और इसके अंदर जो करंट प्रवाह कर रहा है वो मूव करा ऊपर की तरफ, तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो हम लेंगे माइनस का ICRL, माइनस लिया मैंने यहाँ पर। दूसरा आप देखो ये एरो नीचे आ रहा है, तो ये एरो इस बैटरी के पहले पॉजिटिव पे जा रहा है, बैटरी का पॉजिटिव एरो और ये बैटरी का नेगेटिव है। जो बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है, तो बैटरी के पॉजिटिव पे आ रहा है ये। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लेंगे पॉजिटिव, तो प्लस का VCC। अब आगे गया, अब ये एमीटर के नेगेटिव पे आ रहा है, पहले इनकी ये इसको मानते, अगर ये बैटरी है हमारे पास तो पहले बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आ रहा है, तो यानी कि ये भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस का VCE इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो VC को उधर ले जाओ, तो VC क्या बन गया आपका, VCC माइनस का ICRL। तो ये इक्वेशन यहाँ से आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको, बट आप मुझे बता दीजिएगा ग्रुप में लिख करके। अब देख लीजिए ये इक्वेशन ठीक है। देन आपका IC क्या हो जाएगा, आपका IC हो जाएगा VCC माइनस का VC, तो आपका IC क्या हो जाएगा, RL को ले जाते हैं नीचे की तरफ, VCC बाय RL माइनस VC बाय में RL। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको आगे लिया है, इसको पीछे लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टर्म है हमारे पास ये। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, अगर हम मानते हैं, अगर हम एज्यूम करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं VC के बीच में, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं VC के बीच में और IC के बीच में, तो यानी कि ये तो आपका VC है और ये आपका IC है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से काम करेगी। यहाँ पर IC तो काम करेगा Y का, VC काम करेगा X का, और दीज टू आर दिस इज कांस्टेंट एंड 1/RL का जो माइनस है काम करेगा M का। तो कंपेयर करते हम जानते हैं ये क्या होता है, ये तो एक इक्वेशन है किसकी, लाइन की। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल काम कर रहा है VCE का, वाई वेरिएबल काम कर रहा है IC का, स्लोप काम कर रही है -1/RL का, और कांस्टेंट से हम बोलते हैं इंटरसेप्शन, वो काम कर रही है VCC/RL का। ठीक है, ओके। अब हमें इस लाइन के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। कैसे पता करेंगे? मान लेते हैं सबसे पहले, अगर हम मानते हैं IC आपका 0 है, अगर आपका IC 0 हो गया मतलब क्या है, ये टर्म इसके इक्वल आ गई, ये टर्म वहाँ चली गई, ये टर्म इसके इक्वल आ गई, दोनों तरफ RL है, नीचे नीचे RL कट गया आपका, तो क्या आपका आ गया VCE = VCE। देख लो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है कि यहाँ पर अगर ये टर्म, देखो मैं इसको लिख के बता रहा हूँ आपको टर्म को, यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि आपका जो IC है वो इक्वल टू किसके है, -VCE/RL के प्लस में VCC/RL के। अगर ये टर्म 0 है, ये आपका 0 कर दिया मैंने, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो क्या आ गया आपका VCE/RL इक्वल टू आ गया है VCC/RL के। ये टर्म कट गई, क्या बच गया, VCC = में आ गया VCE, वही यहाँ पे लिखा हुआ है VCE = VCC। ठीक है, और ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, जब हमने IC को 0 किया है, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर, जहाँ आपका IC 0 कहाँ पर, आपका IC 0 है यहाँ पर इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो आपका VC किसके इक्वल है, VC यहाँ पे इक्वल है VCC के। मान लिया ये पॉइंट आपका VCC है, तो आपको पहला पॉइंट मिल गया। ऐसे में क्या करते हैं दूसरे केस में, अब अगर हम करते हैं आपका जो VCE है वो 0 आपका मान लिया, ठीक है। अब अगर आपका VCE 0 है हमारे पास, तो ये टर्म 0 हो गया आपकी, तो आपका IC क्या आ गया, आपका IC आ गया VCC/RL, VCC/RL। और आपका VCE 0 कहाँ पर होता है, VCE 0 होगा आपका इस लाइन के ऊपर। आपका IC कितना आ गया, आपका IC आ गया इतना, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं VCC/RL, तो एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला को ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने पर जो लाइन बनती है उसे बोलते हैं DC लोड लाइन। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, DC लोड लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा DC लोड लाइन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के अंदर बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये, व्हाट इज ऑपरेटिंग पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट और क्यू पॉइंट। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन द DC लोड लाइन। DC लोड लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो दर्शाता है किसकी वैल्यू को, कलेक्टर करंट की वैल्यू को और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू को दर्शाता है। कब, जब हमने इनपुट में कोई सिग्नल दिया ही नहीं, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, DC लोड लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू को दर्शाता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, या फिर क्यू पॉइंट। आप कहते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर आपने एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करना है तो आपका जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, वो क्यू पॉइंट होना चाहिए आपका इन द एक्टिव रीजन। क्योंकि एक्टिव रीजन में क्या होता है हमारे पास, आपको ध्यान हो, एक्टिव रीजन के अंदर आपका जो बेस एमीटर जंक्शन तो होता है फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर एमीटर जंक्शन होता है आपका रिवर्स बायस। ठीक है, और एक्टिव मीडियम के अंदर हम क्या करते हैं, एक्टिव मोड में हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो वही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल की प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को हमने हमेशा लोड लाइन के सेंटर में ऑपरेट करना चाहिए। देखो ये लोड लाइन आपका, अगर ऊपर जाओगे तो आपका आ गया सैचुरेशन रीजन, नीचे आओगे तो आपका आ गया कट ऑफ रीजन, बीच में क्या है आपका एक्टिव रीजन। तो सेंटर में आपको हमेशा ऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए 3 कंडीशन है। पहली बात तो क्या है, आपका जो इनपुट सिग्नल है दैट शुड बी 0। नंबर 2, बेस एमीटर वोल्टेज शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज शुड बी रिवर्स बायस। ये इसकी 3 कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपका था क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट और क्वेश्चन पॉइंट। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट तो क्या होता है, वो DC लोड लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो
कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू को शो करता है। और वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्विशेंट पॉइंट कब बन जाता है, जब हम ऑपरेटिंग पॉइंट को लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर में से चूज़ करते हैं, जहाँ पर आपका एक्टिव मोड होता है, उसे हम बोलते हैं क्विशेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे बेटर एम्पलीफिकेशन मिलती है इनपुट सिग्नल की। तो इसी के साथ आपका जो लास्ट टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया, आपकी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी आपको हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।